7 to 9 LPA is the average package. Our year has also been placed in JP Morgan, Bain Consulting Firm, and ZS Consulting Firm. 75 LPA, 90 percentile above. Mostly हो जाता है 90 percentile above. उस साल 95 percentage in board में उन लोगों को भी CSE मिल गया. It is not in the outskirt, it is in the center of the city. Even being a student of Thappas, sometimes I get annoyed of the fact because of that security system. Why Yes. getting marks is never easy. Like Okay. from my point of view, getting marks is never easy. Also, थापर में attendance related बहुत strictness है. I think we can approximately ऐसा conclude कर सकते हैं कि 20 से 25 लाख के आसपास तुम्हारा खर्चा होने वाला है ट्यूशन फीस में। 20 आई से थिंक 25 lakh was back when I was there. तो it was in my ओह ओके। semester. हाँ तो अभी ये बहुत हाँ बढ़ चुका है. अभी it is around हाँ I guess 3 to 4. तो that will be 30 to 40 3 to LPA. 4। ओह माय गॉड क्रेजी फीस। ओके यार, अगर तुम्हें बैंगलोर के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन रिलेटेड कुछ भी हिल चाहिए या अगर तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन रिलेटेड कुछ भी हिल चाहिए तो तुम हमारे टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर तुम्हें नीचे नंबर दिख रहा होगा। एंड यार इस साल बहुत सारे नया कॉलेज का स्टूडेंट पॉडकास्ट आने वाला है। एंड ऑल्सो लास्ट ईयर्स में हमने जो भी पॉडकास्ट किया था ना स्टूडेंट पॉडकास्ट, तो उसका भी नया वर्जन आने वाला है कुछ कुछ कॉलेज का। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड ऑल्सो फील फ्री टू ऐड अ कॉमेंट डाउन बिलो कि यार तुम ऐसे कॉलेज का स्टूडेंट पॉडकास्ट और किन मतलब कॉलेज का देखना प्रेफर करोगे, राइट? सो आई विल मेक दैट हैपन फॉर यू। एंड चलो कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1। वेलकम वर्णिका, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हाउ आर यू डूइंग? I'm doing well. How are you doing? आई एम डूइंग गुड टू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो अपने आपको कोई इंट्रोड्यूस कर दो। Okay, so I'm Bernika Sen, a final year student from Bachelor's of Engineering in Electrical Instrumentation and Control Engineering at Thapa Institute of Engineering and Technology. Currently, I'll be graduating in the year 2026, and now currently I'm working as an airfield ground service engineer at Honeywell, where I look after the operation and maintenance of all the airfield ground lighting system. I get a good exposure to understanding the how an airport works 24 into 7. What are the different role that is working under the airport operation team? Who are the key stakeholders of an airport and how each of them contribute towards the continuous contribution of an airport operation, and also each of their responsibility. I am also getting a good exposure to the hands-on experience of all the ground field lightning service and daily operational activities and the security and management system, handling all the disruption and not working under attack. And I do also have secured a full-time opportunity at Deloitte India as an technology and transformation analyst in the ET and P SAP tech analyst field, where I will be working as an interaction between the technology, consulting, and business and transformation field. So yeah, as of now, if you ask me how my journey have been in Thapar, so at Thapar, it's a quite good blend of academics, leadership, experience, and yeah, technical projects, industry exposure. Like Thapar has molded me from a kid Varnika to an adult Varnika, taking all the responsibility of corporate field, like independent woman and everything, taking her own responsibility and facing the world as an woman. So yeah, I'm always grateful that to that college, and yeah. कूल कूल। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेट्स फॉर योर फुल टाइम ऑफर इन डिलॉयट। एंड इंट्रोडक्शन कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया बट या इट्स प्रीटी गुड, लाइक योर जॉब इज़ प्रीटी गुड। लाइक मैंने इतना मतलब आई थिंक कॉम्प्लेक्स लगा पहली बात तो जॉब का जो रोल है, बट या इट्स प्रीटी गुड। सो ओवरऑल हम बात करेंगे स्थापड़ के बारे में ही कि लाइक तुम्हारा अभी यू आर इन फाइनल ईयर ऑफ कोर्स, तो तुम्हारा बहुत अच्छा नॉलेज भी हो चुका होगा अबाउट थापर। सो इफ स्टूडेंट वाना एक्सप्लोर अबाउट थापर तो उनको पता चल जाएगा थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी अबाउट थापर। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। थोड़ा सा let's start with the placement. Before placement, let's start with your branch only. Like you said कि your branch is electronics, so electronics बहुत लोग थोड़ा सा hard बोलते हैं academically. So how is your overall experience with electronics? So, my branch is in electrical instrumentation and control engineering, which comes under the electrical instrumentation and control department, that is EID department. So, in Okay. our branch in the first years, all the branch in Thapar in the first year and second year focuses in completely same curricular activities, that is. And academic activities as well. So the all the subjects remain same, like the physics. We have two.
division of subject, one being the physics one and one being the chemistry one, which is called a group A and group B. So everyone entering in Thapar is divided into group A and group B. If the first year group is has like if the first year group को अगर हमारा ग्रुप ए स्टडी कराया जाता है, तो फिर उसी ग्रुप को फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में अगर ग्रुप ए स्टडी कराया जाता है, तो उसी ग्रुप को फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में ग्रुप बी स्टडी कराया जाता है. तो हमारे में लाइक फर्स्ट ईयर तो जनरल सब्जेक्ट सबका सेम ही होता है. आफ्टर दैट व्हेन वी कम टू सेकेंड ईयर, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक फोकस्ड होता है. एंड स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड ईयर टू फोर्थ, मतलब फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर, एवरीथिंग इज लिटिल बिट फोकस्ड टुवर्ड्स द कंप्यूटर, बिकॉज तब तुम्हारा वो प्लेसमेंट सेमेस्टर आ जाता है. एंड ऑब्वियसली all the companies coming to Thapar, somewhere or the other focuses towards like computer branches over electronic branches. But though everyone is being taught the general computer, AI, software engineering, blockchain, फिर हमारा computer vision हो गया, data analytics, DVMS, database management system, software architecture and everything. बाकी हमारे सेकेंड ईयर का जो पूरा करिकुलम होता है, दैट इज कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक्स फोकस्ड. इन केस एनी स्टूडेंट वांट टू परस्यू कि तुम्हें कोर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में जाना है, तो दैट यू कैन फोकस इन सेकेंड ईयर इन अ वेरी गुड वे. एंड ऐसा नहीं कि थर्ड ईयर पूरा का पूरा ही तुम्हारा कंप्यूटर में चला जाता है. देयर इज अ मिक्सचर, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट. लाइक वी स्टडी सिग्नल्स एंड सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स engineering, then data acquisition and system management, like a very good combination and blend of subjects. So EIC as a whole, if you ask me how the branch is, uh, as a person who has already pursued in this field for 4 years, I would say that it is a very good branch. Like if someone is like looking up कि मुझे ये branch लेना है, without twice thought, just take it. But ऐसा नहीं कि it's the best branch of Thapar. Obviously, you have got ENC, electronics and computer, over EIC. Then you have got EEC. Then ECE, that is electronics and communication. उसके बाद COE हो गया, CSE हो गया, उसके बाद COPC हो गया. So अलग अलग branches over जाता ही है, ठीक है. But still, if you think that I'm not getting all the top branches, so should I stick to EIC or should I switch to somewhere else? So you can of course choose EIC at any point of time because it's a very good branch. And coming to the faculty and everything, they have got a very good faculty, good experienced faculty. Most of our the faculty members has been trained from outside also, and उनके पास very good years of experience है. ऐसा नहीं कि अभी join किया and अभी they are taking the classes and all. They are all like have been working in Thapar for say 15 to plus years. So they have got a very good hands-on experience, and very good to go. Like you don't have to think twice if you need to choose AIC. And also the placement rate is also very good in AIC. That is a 7 to 9 LPA is the average package, where students have also got higher packages over the 7 to 9 LPA. Students from our year has also been placed in JP Morgan, Bain consulting firm and ZS consulting firm. तो या और अगर किसी को तुम्हारा कोर चाहिए, like if you are more interested in core companies, then Asian Paints, Reliance, Samsung CT, CNT, HEML, सब कुछ मतलब available है. तो it's a very good thing, you can go over there. And if someone is Got it. focused towards analytics field, then they can go Deloitte, ZS, Bain, as I said, fintech firms. Then Got it. वो आ जाता है JP Morgan. Hmm. Yeah. Makes sense. मतलब प्लेसमेंट में थोड़ा सा बाद में आते हैं. तो आई वाज अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर ब्रांच, बेसिकली इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस. तो यू सेड कि एक जो प्लस पॉइंट है थापर में, आई थिंक इन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस तुम्हारा और इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस कि सेकेंड ईयर के बाद से कंप्यूटर का सब्जेक्ट भी इन्वॉल्व रहता है, जिससे प्लेसमेंट के टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन तो सी एस वर्सेस इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा कम होता है, राइट? Yeah, exactly. अच्छा, गॉट इट. तो ये मतलब थियोरेटिकली ये चीज़ सही है या मतलब ऑन पेपर प्लेसमेंट के टाइम पे भी ये चीज़ दिखता है, लाइक कंपनीज एक्चुअली में सभी को बैठने देता है या वहाँ पे कुछ होता है डिस्क्रिमिनेशन? मोस्ट ऑफ द कंपनीज 80% ऑफ द कंपनीज सारे अच्छा, ब्रांचेस के लिए भी अवेलेबल है, एक्सेप्ट फॉर गॉट इट. मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल. ठीक है, जो सिविल ऑल्सो जो कोर ब्रांचेस हो जाता है. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, थापर में जो हमारा बायोटेक ब्रांच है और शायद सिविल या केमिकल एक ब्रांच है, वो उनका प्लेसमेंट होता है 7th सेमेस्टर एंड हमारा प्लेसमेंट होता है एट अच्छा, सेमेस्टर. लाइक फॉर अस ऑल अदर ब्रांचेस 8th सेमेस्टर इज एन इंटर्नशिप सेमेस्टर, and for those three branches, that is biotech, civil and chemical, their 7th semester is an internship semester.
good to go. Oh, makes sense. सो Continue, जब कम continue. या सो जब कंपनीज आती है, दे मोस्ट ऑफ द कंपनीज 80% ऑफ द कंपनीज दे डू नॉट लाइक फिल्टर आउट कि हम मैकेनिकल को नहीं बैठने देंगे, इसको नहीं बैठने देंगे, उसको नहीं बैठने देंगे. 80% ऑफ द कंपनीज डू इंक्लूड एवरी ब्रांच. बट या समवेयर और द अदर वो 20% कंपनी आ ही जाता है दैट वी आर Mm, मोर सी एस स्पेसिफाइड कंपनीज, हम सिर्फ सी एस ब्रांच के बैठने देंगे, या फिर सर्किटल ब्रांच विच इंक्लूड मोर सी एस like ENC, mm. EEC, ECE. So yeah, they these Got constant it. Makes everywhere lies. sense. तो ठीक है. Makes sense. And if one मतलब more, 80% बैठने दे रहा है, आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है. आई थिंक मोस्ट कॉलेजेस में इतना नहीं होता है. सो yeah, दैट्स प्रीटी गुड. सो and one more या thing you say. या कंटिन्यू. या Yeah, so one more thing you said that how's the student culture like, मतलब स्टूडेंट को ऐसा कोई इन पेपर तो दिक्कत नहीं आती. आई थिंक कि इन पेपर अगर तुम खुद को ट्रेन कर रहे हो, क्योंकि करिकुलम तो होता ही है, ठीक है, तो करिकुलम में अच्छा खासा पढ़ाया जाता है एंड गुड नंबर ऑफ एक्सपीरियंस टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है. इफ यू आर इवन फोकसिंग इन द करिकुलम, जो है तुम्हारे उसमें टॉपिक्स जो है, इफ यू आर गोइंग डीप इन टू इट एंड मेकिंग योर सेल्फ स्टडी ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल्स, तो देयर प्लेसमेंट में इतना दिक्कत नहीं आती. लाइक वी हैव डीएसए, हमें सारे ब्रांचेस को डीएसए कराया जाता है, सारे ब्रांचेस को डीबीएमएस कराया जाता है, डेटा एनालिटिक्स एंड ऑल. सो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आती इफ द स्टूडेंट इज मोर फोकस्ड एंड लाइक स्ट्रिक्टली एंड डिसिप्लिन्ड वे वो करिकुलम फॉलो कर रहा है तो. मेक सेंस कूल. तो ओवरऑल मुझे जो लगा कि करिकुलम वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. एंड जो तुमने बोला कि 80% कंपनी सभी को अलाउ करते हैं, दैट इज क्रेजी नंबर आई थिंक. सो प्रीटी गुड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा प्लेसमेंट में डिटेल में. तुमने थोड़ा सा ऑलरेडी टच कर दिया प्लेसमेंट को कि तुम्हारे ब्रांच में इट्स अराउंड आई थिंक 7 to 9 LP तुमने बोला ऑन एन एवरेज. हाँ हाँ. सो व्हाट इज द ओवरऑल स्टैटिस्टिक? अगर तुम थोड़ा सा डीप में जाना चाहते हो, लेट्स से सीएससी ब्रांचेस में कितना जाता है, इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस में कितना जाता है एंड ऑल. सो मैं अपने खुद के ब्रांच से स्टार्ट करना चाहूँगी, ठीक है. तो श्योर. इन ईआईसी जनरली जो हमारा एवरेज पैकेज लाई करता है, एज आई सेड अर्लियर, 7 to 9 LPA के रेंज में लाई करता है, डिपेंडिंग अपॉन ईयर एंड स्टूडेंट प्रोफाइल कम्प्लीटली, ठीक है. देन यस, देयर आर स्टूडेंट्स हु गेट मच हायर पैकेज, जैसे मैंने बोला था कि कंसल्टिंग फर्म में लिया था, फिर मतलब जेडएस ने प्रोवाइड किया था, जेडएस आई गेस 15 LPA के आसपास प्रोवाइड किया था. फिर डेलॉयट प्रोवाइडेड 8.1 LPA. देन बेन ऑल्सो प्रोवाइडेड समवेयर अराउंड 14 LPA. देन जेपी में भी एक बच्चे का लगा हुआ है ईआईसी में से, ठीक है, who's the branch topper also. So then regarding the roles, yes, core electronics, automation, instrumentation companies, ये सब भी आते हैं. जैसे मैंने बताया था कि आपको एशियन पेंट्स आया था, रिलायंस आया था, सैमसंग सीएनटी आया था, फिर एचएमईएल आया था, ठीक है. हाउएवर जो स्टूडेंट जो हमारा आईटी एंड एनालिटिक्स से ऑप्ट करता है, आईटी एनालिटिक्स एंड कंसल्टिंग फर्म की तरफ ज्यादा फोकस करता है, दे गेट अ लिटिल बिट हायर पैकेज एज कम्पेयर टू द कोर, दोज आर कम्प्लीटली फोकस टूवर्ड्स कोर, ठीक है. सो कॉमन रिक्रूटर हमारे ब्रांच में ईआईसी में जो हर बार आता ही आता है, इंक्लूड इंडस्ट्रीज लाइक एशियन पेंट्स, सैमसंग सीएनटी, ठीक है, जेएसडब्ल्यू 2 बार आता है, ठीक है. एक बार तुम्हारा थर्ड ईयर में भी आता है इंटर्नशिप प्रोवाइड करने के लिए, एक बार तुम्हारा फोर्थ ईयर में भी आएगा उससे तुम्हें फुल टाइम अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ठीक है. एंड दोनों बार हम ईआईसी के स्टूडेंट ने, ये थर्ड ईयर में एक ईआईसी के स्टूडेंट ने जेएसडब्ल्यू में इंटर्न कर रखा था, एंड फुल टाइम में भी अभी गुड नंबर ऑफ पीपल गॉट इन जेएसडब्ल्यू, ठीक है. देन कंसल्टिंग फर्म लाइक बेन आता है, डेलॉयट आता है, जेडएस आता है, मैंने बता ही दिया था. आईटी रोल्स के लिए तुम्हारा लाइक फिनटेक रोल्स के लिए तुम्हारा वो जेपी आ गया, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ईआईसी के स्टूडेंट ऑफ कैंपस भी बहुत अच्छे अच्छे रोल्स लेते हैं. लाइक एनालिटिक्स रोल के लिए डिसीजन ट्री में ले लिया एक बच्चे ने, फिर वैसे भी बहुत सारे कंपनीज में ले लेते हैं. तो या जनरली ईआईसी के तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है, ठीक है. एंड अगर तुम थापर में इन जनरल प्लेसमेंट का पूछ रहे हो, तो फिर थापर में लाइक जो प्लेसमेंट कल्चर है, गेट इट, मैंने कहीं पे नोट कर रखा था. श्योर श्योर. जस्ट गिव मी अ सेकंड. Are you from placement coordinator or something like? तुम मतलब या, तुम आर्टिकुलर जिस तरीके से कर, या आई गॉट इट. आई थॉट सो. I am the placement नाइस. coordinator from EIC, Electrical Instrumentation and Control Engineering. So I have got a good exposure. But yeah, like गॉट इट. what happens is that when you come to industry ना, you have got like हाँ. तुमको टेंडेंसी बन जाता है, तुम कुछ भी बोलो उससे पहले तुम उस चीज को नोट कर लो. हम्म. तो I have got a हम्म.
लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग कि मुझे चीज़ें मेक नोट करने सेंस। की ज़्यादा लाइक आदत मैंने मैंने जितना पॉडकास्ट का इतना डिटेल में प्लेसमेंट के बारे में किसी ने बात नहीं किया, दैट्स व्हाई आई थॉट कि ओके इट्स लुक्स प्रीटी कूल, तो आई थॉट ओके प्रीटी गुड। ओके या सो सो वी कैन कंटिन्यू अगेन। हम तो इस श्योर। बार नॉर्मली हमारे पास बहुत सारे कंपनीज आए थे इंक्लूडिंग आयन इंडिया एक ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है। हम्म। उसके बाद जेपी मॉर्गन भी आया था। जेपी मॉर्गन ने गुड नंबर ऑफ हम्म। स्टूडेंट्स उठा के लेके गए। सेम जेएसडब्ल्यू ग्रुप्स भी मैंने बताया था, जिंदल स्टील से आए थे, लेंसकार्ट आया था, हमारे इधर स्विगी आया था, जोमेटो आया था, एप्पल आया था। सो बेटर आई टेल यू द प्लेसमेंट रिलेटेड थिंग लाइक कंपनी वाइज जो पहले से आया था या। देन, ठीक है। तो पहले हम्म। हमारा था समर इंटर्नशिप एंड पीपीओ के लिए आया था डेलोइट, दैट हम्म। हायर्ड थ्रू कंपटीशन, लाइक उनका जो हैकाथॉन होता है वो, ठीक है, बिजनेस केस स्टडी। ओके। उसके बाद फिर ओके। आया था जेड एस ऑल्सो पहले हायर्ड थ्रू कंपटीशन, दैट इज बिजनेस केस स्टडी थ्रू, जहाँ पे ईआईसी का एक बच्चे का भी हुआ था। आई टेल यू द नेम लेटर विच इज बेटर नॉट टू डिस्क्लोज। श्योर श्योर। देन श्योर श्योर। फ्यूचर फर्स्ट आया था, फ्यूचर फर्स्ट एकेडमी, दैट इज एन एचएफटी फर्म, बट अ लिटिल लाइक बुटीक एचएफटी फर्म। तो उसमें हम्म। ऑलमोस्ट सारे कंपनी से मतलब सारे ब्रांचेस एलिजिबल थे, सीओई, सीओपीसी, ईएनसी एंड ईईसी एलिजिबल थे, ठीक है। उसके बाद आया था जेड हेल्थर, उसके बाद मीशो एंड टॉप कंपनीज लाइक जोमेटो, न्यूटनिक, सेल्स फोर्स, बोस्टन, आईडीएफसी, वेरोक, इनसे बहुत सारे कंपनीज आया था। एंड लिटरली मतलब मोर देन ईच ऑफ द कंपनी मोर देन 4 to 5 स्टूडेंट्स लेके गए थे। तो इफ नाइस। आई टेल अबाउट माय ब्रांच, तो मेरे ब्रांच में अभी 43 बच्चे हैं, जिसमें से 43 में से 43 बच्चों का ही इंटर्नशिप लग रखा है। 3 हैज गॉट फुल टाइम अपॉर्चुनिटी प्लस इंटर्नशिप, दैट इज एफटी प्लस इंटर्नशिप, एंड देयर आर 10 to 20 persons who have got full time opportunity. Good to go. Yeah. नाइस। And नाइस। बाकी generally बाकी जो companies आए थे, they have also, most of the companies have provided full time opportunity followed by internship, and कुछ कुछ ऐसे भी companies आए थे those who have provided intern plus PPO, that is a internship, and then after 6 months you will get to go for permanent placement offer depending upon your performance. And कुछ ऐसे भी companies आए थे those who are only for internship. तो yeah, like Thapar mein, if you talk about the placement culture, it is much 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 better than some other colleges, private colleges, as compared to some other private colleges. So yeah, Thapar mein, if you come once in the branch that are already existing like EIC ho gaya, ENC ho gaya, and all these things, so you don't have to think about placement. But yeah, CSE and COE mein thoda sa competition hai placement ka, because over there all the students are like एक से एक। तो स्मार्ट ओनली। हाँ। तो या तो गॉट उधर इट। थोड़ा सा कंपटीशन है, लाइक उधर इफ यू गेट 7.5 CGO also, that is also a हम्म। less for in placement perspective, but in other हम्म। branches 7.5 to 8 is a good CGPA for getting a place into placement, and yeah, हम्म। company do hire up to this CGPA. तो yeah. गॉट इट। और किस टाइप का हाईएस्ट सैलरी जाता है, लाइक जस्ट फॉर मार्केटिंग पर्पज, लाइक कितना नंबर जाता है मैक्स? नेक्स्ट हाईएस्ट सैलरी इस बार लिया था, इस बार मैक्सिमम हाईएस्ट सैलरी लिया था उसने, एटलेशियन ने। एक हम्म। बच्चे को लिया था, सीएससी से एक बच्चे को लिया था, एंड नाइस। दैट इज अराउंड पैकेज 75 LPA, 35 days। गॉट इट। गॉट इट। लाइक जस्ट फॉर मार्केटिंग पर्पज अच्छा लगता है, लाइक शॉर्ट के टाइम पे। हाँ। एंड सो उसके बाद जेपी ने भी या। लिया था, जेपी वाज 19.75। देन मेक माई ट्रिप वाज 22 LPA। उसके बाद डेलोइट यूएसए एंड इंडिया वाज 8.1। उसके बाद बार्कले ने भी लिया था, दैट इज 13.5 LPA। फिर या जाता है, अच्छा खासा जाता है, लाइक पैकेजेस डू गो गॉट हायर। इट। 28 LPA भी आ गॉट जाता इट। है। स्टाइपेंड अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो देन स्टाइपेंड विल इजीली रेंज फ्रॉम 30 to 50K पर मंथ। तो या गुड टू गो। जोमेटो का एंड भी बहुत इंटर्नशिप। अच्छा पैकेज था। गॉट इट। एंड इंटर्नशिप में तुमने क्या देखा कि तुम्हारे बैच में लाइक कितना परसेंटेज ऑन कैंपस लग रहा है? लेट्स लाइक मतलब सपोज 43 का तुमने बोला कि बैच साइज है तुम्हारे ब्रांच में, तो कितने को ऑफ डायरेक्ट में मिल गया था ऑन कैंपस? 43 में से 29 को मिल गया था डायरेक्ट ऑन कैंपस। 60-70% ऑलमोस्ट। गुड या नंबर्स। गॉट इट। ओके, तो हमने प्लेसमेंट स्टार्ट और इंटर्नशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा डीप में जा चुके हैं हम ओवरऑल, क्योंकि यू आर फ्रॉम प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर ओनली, सो या काफ़ी अच्छा नॉलेज था।
सो ओवरऑल मोटा-मोटा अगर हम बात करें कि प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, स्पेशली तुमने जो बोला इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस में मुझे लगा कि अच्छा ज़्यादा अच्छा है बिकॉज़ तुमने बोला कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा कम है एज़ कम्पेयर टू सीएस ब्रांचेस एंड ओवरऑल एस्टेब्लिश्ड ब्रांच है, तो प्लेसमेंट का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा है प्लेसमेंट का। एंड सीएसई ब्रांचेस में शायद तुम्हें ऑफर ज़्यादा देखने जितना मुझे समझ में आया कि ऑफर का नंबर शायद थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा हो सकता है, बट अगेन तुम्हारा कॉम्पिटिशन भी उस हिसाब से काफ़ी होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग, मुझे स्टूडेंट इनटेक, क्योंकि वो चीज़ भी शायद कंपटीशन वाला एक फैक्टर को ऐड करेगा। तो स्टूडेंट इनटेक कैसा है इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस में और सीएस ब्रांचेस में अप्रॉक्स में भी? Student intake in Thapar is little bit quite higher. In higher ही होता है. हम्म। Branch wise Thapar diversify each and every branches after 2 to 3 years. ठीक है. पहले जब when we joined a new branch started 1 year prior, that year we joined a new branch started COBS. Now Thapar has also diversified branches including data science and robotics and AI and everything. ठीक है. तो yeah, student intake is good in Thapar, very good in Thapar. थोड़ा सा as far as I researched about a little bit deeper, Thapar has got a reservation, one seat reservation for Northeast, one seat reservation for Jammu and Kashmir. ठीक है. So, but for that you need to score a really good number in your JE and all. बाकी depending upon बाकी other branches, आपको जो CSC, COPC एंड COE में हायर होता है, ठीक है, वो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन योर जेई मार्क्स. ठीक है. So I'll go in a मेक सेंस। synchronized way. If that will be better. हाँ Like हाँ I'll go in a sync हाँ way. हाँ। ठीक है. फर्स्ट थापर का हायरिंग चलता है आपका उस टाइम पे वंस यू आर डन विथ योर जे. ठीक है. उस टाइम पे थापर का हायरिंग हाँ। चलता है. वंस यू आर डन विथ योर जे मेंस तो तब थापर का मेन हायरिंग स्टार्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन योर जे मेंस मार्क्स. ठीक है. उसके बाद हाँ। थापर का हायरिंग स्टार्ट होता है, नहीं उसके पहले भी थापर एक बार हायर करता है डिपेंडिंग अपॉन योर क्लास 12th मार्क्स. ठीक है. ओके। 12th मार्क्स के बेसिस पे आपका हायरिंग हो गया. आपने कुछ ब्रांचेस वगैरह चूज कर लिया, आपको अकॉर्डिंग टू द मार्क्स कट ऑफ एंड जो भी कट ऑफ उसी ईयर के हिसाब से बेसिकली डिसाइड बेसिकली होता है. आपका एडमिशन हो गया, हायरिंग मतलब उस टाइम पे तो 12 भी हुआ है, या तो या थापड़ या में या हायरिंग और सही या या ओके, मतलब एडमिशन मतलब हो सो गया. मच प्लेसमेंट कोऑर्डिनेशन टर्म। हाँ। सॉरी ठीक है, एडमिशन, या कंटिन्यू। आई गो मोर इनटू हाँ दिस. हाँ। तो एडमिशन हो गया गॉट इट। आपका ट्वेल्थ हाँ में, ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस में. फर्स्ट एडमिशन आपका हो गया ट्वेल्थ के हाँ। मार्क्स के बेसिस में. देन सेकंड थापर के में एडमिशन होता है आपका जे के मार्क्स के बेसिस में. ठीक है. और ये हम्म। पूरा एडमिशन टर्म चलता रहता है टिल दिसंबर. ठीक है. दिसंबर एंड ओके। या एंड बीच में थापर का इंटरनल ब्रांच अपग्रेडेशन भी होता है डिपेंडिंग अपॉन योर जेई मार्क्स. लाइक हाँ। सपोज लेट मी गिव माय एग्जांपल ओनली. व्हेन आई was admitted in Thapur, I was given the branch biomedical. Like in 12th, in my हम्म 12th, I was having PCMBC. तो मेरे पास हम्म वो भी था, लाइक बायोलॉजी भी था, मैथ्स भी था, बिकॉज ऑफ विच आई गॉट इन हम्म टू बायोमेडिकल ब्रांच. Then since I was having हम्म math also, after that multiple switching I got electrical instrumentation and engineering branch. तो वो ब्रांच हम्म अपग्रेडेशन आप थापर में एक बार घुस जाओ तो उसके बाद जेई के मार्क्स के बेसिस में, जेई के परसेंटाइल के बेसिस में आप कर सकते हो. ठीक है. जिसको हम स्पॉट राउंड ओके बोलते हैं, मतलब इंटरनली हम ओके। उसको स्पॉट राउंड बोलते हैं. एंड थापर के वेबसाइट में हर बार अपडेट हो जाता है कि इस टाइम पे आपका स्पॉट राउंड 1 हो रहा है, इस टाइम पे आपका स्पॉट राउंड 2 हो रहा है. तो स्टूडेंट कैन गो इनटू द एकेडमिक ब्लॉक एंड like participate in it, and according to your JE percentile, this branch if it suits you so you can take it. Okay. तो उसके ओके बाद फिर ओके। होता है दिसंबर टेस्ट. उसके बाद फिर हम्म से ब्रांच अपग्रेडेशन होता है. एक ब्रांच अपग्रेडेशन होता है डिपेंडिंग अपॉन योर CGPA विच इज एट द एंड ऑफ फर्स्ट हम्म ईयर. एंड दूसरा ब्रांच अपग्रेडेशन होता है डिपेंडिंग अपॉन योर दिसंबर टेस्ट, जो थापर का खुद का टेस्ट होता है. जैसे हम बिट्स पिलानी का खुद का टेस्ट देते हैं, VIT का खुद का टेस्ट देते हैं, ऐसे थापर का खुद का भी एक टेस्ट होता है, वो दिसंबर में होता है विच इज वी कॉल दैट दिसंबर टेस्ट. उस दिसंबर टेस्ट में ओके। डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स एंड रैंकिंग. Was it lagging again? Or good to go? नो नो नो, ये गुड टू गो या। उस ब्रांच उस टेस्ट में डिपेंडिंग अपॉन योर लाइक मार्क्स एंड रैंकिंग फिर आप दोबारा ब्रांच अपग्रेडेशन कर सकते हो. एंड देन एक ब्रांच हम्म अपग्रेडेशन होता है एकदम एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में, नॉट फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर, पूरे फर्स्ट ईयर के एंड में, डिपेंडिंग अपॉन योर क्यूमुलेटिव CGPA, दैट इज क्यूमुलेटिव ग्रेड जो भी होता है. ठीक है. नॉट डिपेंडिंग अपॉन योर हम्म SGPA, स्टूडेंट ग्रेड, दैट इज आपके CGPA के बेसिस पे. इफ यू गेट लाइक 9.5 और 8.5 हायर CGPA, then also you get a chance हम्म to upgrade your branch depending upon उस ईयर थापर ने क्या क्राइटेरिया सेट किया है, क्या कट ऑफ सेट किया है, कितना उनके पास स्पेस है और बच्चे उस ब्रांच में लेने के लिए. वो मल्टीपल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, बट या देन ऑल्सो यू गेट टू अपग्रेड योर ब्रांच.
सो बेसिकली काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो बेसिकली जो मुझे समझ में आ रहा है कि थापर में एंट्री तुम्हें मिलता है बोर्ड के मार्क्स के बेसिस में या तो जेईई मेन के बेसिस में, तुम्हें एक ब्रांच पहले मिल गया। या नाउ डिपेंडिंग ऑन योर जेईई स्कोर और योर फर्स्ट सेमिस्टर सॉरी फर्स्ट ईयर के सीजीपीए, उसके बेसिस में तुम्हारा बाद में डिफरेंट राउंड में अपग्रेडेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और उसका कोई मतलब गारंटी नहीं है ऑब्वियसली। या सो द फर्स्ट गारंटी तुम्हें जो ब्रांच मिला वही बेसिक गारंटी है, उसके बाद होगा या नहीं होगा डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, राइट? यस, गॉट बट इट। मोस्टली सो हो जाता है, ओके, मोस्टली हो जाता है इफ यू हैव अच्छा गॉट अ मोस्टली हो गुड जाता है। जेई परसेंटाइल, और इफ यू हैव हाँ, गॉट अ गुड फर्स्ट ईयर, मतलब गुड ग्रेड इन द फर्स्ट ईयर, एट द बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इफ यू हैड अ गुड सीजीपीए, हाउ गुड जेई परसेंटाइल वी आर टॉकिंग अबाउट, लाइक किस कितना रेंज में? 90% अब, 90% अब मोस्टली हो जाता है, 90% अब। इसमें तुम्हें मतलब बेटर ब्रांचेस मिलते हैं लाइक इलेक्ट्रिकल सीएससी का कोई ऐसे, राइट? या यू गेट अ लिटिल बेटर ब्रांचेस। मेक सेंस। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। एंड ओवरऑल जो इनिशियल कट ऑफ होता है वो कैसा होता है फॉर डिसेंट ब्रांचेस लाइक सीएससी इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस, इनिशियल कट ऑफ? इट जैसे कि मेरे को 4 साल हो चुका है, ठीक है, तो हाँ इट हाँ हाँ, चेंजेस एवरी ईयर, इट चेंजेस एवरीवेयर, ऑफ लाइक कोर्स ऑफ आई कैन कोर्स गिव एन ऑफ एग्जैक्ट कोर्स। नंबर टू यू कि इतना कट ऑफ होता है, हाँ नाइन्टी हाँ फाइव हाँ। परसेंटाइल और 96%। इट चेंजेस एवरी ईयर डिपेंडिंग अपॉन, यस अगेन द ऑफ फैक्टर कोर्स। थापर ने अपने ब्रांचेस को कैसे डाइवर्सिफाई किया है। हर हम्म। साल, हर 2 साल, हर 5 साल थापर अपने ब्रांचेस को डाइवर्सिफाई कर देता है, बाइफोर्केट करके नया ब्रांच स्टार्ट करता है, ठीक हम्म। है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सीट्स, डिपेंडिंग अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चर दे हैव, डिपेंडिंग अपॉन एवरीथिंग, हम्म। मल्टीपल फैक्टर्स उसके ऊपर काम करता है। एंड ऑल्सो उस साल के जेई में हम्म। एवरेज परसेंटाइल क्या गया बच्चों का, एंड हम्म। हाईएस्ट परसेंटाइल क्या गया बच्चों का, सब कुछ स्टडी करने के हम्म। बेसिस पे वो कट ऑफ उसी साल डिसाइड होता है। लाइक एज फार एज आई नो, जब मेरा एडमिशन हुआ था, मेरा एडमिशन बोर्ड के थ्रू हुआ था, बोर्ड के मार्क्स के थ्रू हुआ था, एंड या तो उस साल 95% इन बोर्ड में उन लोगों को भी सीएसए मिल गया था, जब इनिशियली एकदम स्टार्टिंग में, बिकॉज स्टार्टिंग में जब आप बोर्ड के परसेंटेज के थ्रू आप एंट्री लेते हो किसी भी कॉलेज में, तो उस टाइम पे हम्म। इतना कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट्स आर स्टिल लुकिंग हम्म। फॉरवर्ड फॉर जेई, एंड उसके आगे क्या मिलेगा, अगर एनआईटीज वगैरह में हम्म। स्पॉट राउंड हो रहा है, मल्टीपल फैक्टर्स के लिए दे कीप वेटिंग, ठीक है। तो हम्म। स्टार्टिंग में इफ यू आपको को है कि यू हैव गॉट अ गुड परसेंटेज इन बोर्ड एंड यू वांट टू गो टू दैट कॉलेज, तो आप स्टार्टिंग में अगर एडमिशन ले लोगे तो हो जाता है आपको 90-95 परसेंटाइल में सीएससी सीओई मिल जाता है। बट या मेरे गॉट इट। कुछ और भी फैक्टर काम किया था, तो माय पेरेंट्स फोर्स मी हाँ, टू गेट इनटू दैट ब्रांच इवन हैविंग अ गुड लाइक बोर्ड्स मार्क्स, तो सी लाइक माय मेक केस इज सेंस। एक्सेप्शनल वन। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। सो अगर हम देखें ओवरऑल तो 90 परसेंटाइल के ऊपर आई थिंक तुम्हें डिसेंट ब्रांच मिलने का प्रोबेबिलिटी रहता है, 95 के ऊपर मोस्टली सीएससी ब्रांचेस मिलने का प्रोबेबिलिटी रहता है, इतना कंक्लूड कर सकता है, गेस? या हाँ, and also it's गॉट इट। different from other हम्म। state students and हम्म। Punjab state student, Punjab state के student के हाँ। लिए कुछ reservations है, and also कुछ lower like हम्म। percentage criteria भी है, whereas other students के लिए थोड़ा सा high percentage criteria है, but yeah I as I said कि north east में एक seat reserved है and जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक हम्म। seat reserved है। मैक्सिमम तो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा, वो तो स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से तुम्हें रिसर्च करना पड़ेगा जो भी देख रहे हो, बट अगेन ओके। सो एडमिशन प्रोसेस मुझे मोटा मोटा समझ में आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा फीस के बारे में, जो थोड़ा सा आरओआई के अंदर से लग जाए कि ओवरऑल लाइक कितना फीस है, कितना स्कॉलरशिप का कोई अगर कोई क्राइटेरिया है और समथिंग लाइक दैट। या थापर डू हैव स्कॉलरशिप प्रोग्राम एज वेल, अगर आप ब्रांच के लाइक हाईएस्ट, आप अगर आपका सीजीपीए ब्रांच में हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है या थर्ड हाईएस्ट है, अकॉर्डिंगली यू गेट स्कॉलरशिप ऑफ आई थिंक पूरे एक तो आपका स्कॉलरशिप भी मिलता है, एक आपका हाईएस्ट स्कोर करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी भी मिलता है, मनी प्राइज भी मिलता है। द प्राइज मनी इज लाइक 15,000, 10,000 एंड देन 5,000, एंड स्कॉलरशिप आई एम नॉट श्योर एज अगेन, बट या स्कॉलरशिप आपको पूरा उस साल का जो फीस होता है वो ही चला जाता है, वही स्कॉलरशिप में चला जाता है, लेकिन द होल ईयर फीस, अगर आपने मान लिया कि आप फर्स्ट ईयर में यू गॉट एन कॉलेज स्कॉलरशिप एंड देन यू अपग्रेडेड योर ब्रांच और whosoever you were in the top branch only, तो यू हैव गॉट अ स्कॉलरशिप, तो उस साल में सेकेंड ईयर में आपको जो भी फीस होगा एवरीथिंग विल बी पेड ऑफ बाय थापर ओनली। तो या स्कॉलरशिप इज दैट। ओके, सो एंड 100% स्कॉलरशिप। yeah, that's 100% scholarship, and yeah first जो होता है highest CGPA get 100% scholarship and then 75% 50% हाँ accordingly हाँ। whatever, then होता है कि पहला जो फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप मिलता है तो वो तो आपको जेई के बेसिस में मिलता है, सेकेंड हम्म। ईयर वाइज जो स्कॉलरशिप मिलता है वो आपको फर्स्ट ईयर के मतलब प्रीवियस ईयर के
जो परफॉर्मेंस होता है CGPA। सीजीपीए के हम्म। बेसिस में मिलता है। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों मिला के आपका जैसा परसेंटेज होगा उसके बेसिस में मिलेगा, सीजीपीए के बेसिस में, ठीक है। हम्म। तो दिस इज द स्कॉलरशिप बोर्ड। एंड अगेन द फर्स्ट पार्ट व्हेन आई एंट्रीड इन थापर, आई एडमिटेड इन थापर, तो आई मेरा तो मतलब हर सेमेस्टर का फीस रेंज्ड बिटवीन 2 to 3 लाख हर सेमेस्टर का। ओके, फर्स्ट सेमेस्टर, ओके। क्रेजी टू फीस, नाइनटीन से ओके। स्टार्ट 219 से स्टार्ट होता था, लाइक द मिनिमम वी पेड वाज 219 एंड देन द हाईएस्ट वी पेड वाज या 3 समथिंग। तो या पर सेमेस्टर हाँ, का 2 to 3 लाख होता है। ओके, तो अराउंड अराउंड 20 lakhs हो गया 4 साल का, मोटा मोटा। Yeah, again it depends on, again the fees is also branch specific. Like अगर आप COE कोर्स। ले रहे हो, CSE ले रहे हो, तो फीस आपका थोड़ा सा हायर है, क्योंकि obviously most of the हम्म। company comes and they want CSE and COE. Again आप हम्म। उस 20% हम्म। plus 80% के क्राइटेरिया में आ जाते हो and you get 100% placement opportunity. तो हम्म। तो अगर आप उस साइड में आ जाते हो तो आपका थोड़ा सा फीस भी ज्यादा है, COE, CSE एंड COPC, लाइक ऑल द कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस के लिए फीस थोड़ा सा हायर है। हम्म। सेम अगर आप थोड़ा सा कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच नहीं, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल वाले फील्ड में जा रहे हो तो थोड़ा सा कम है। हम्म। एंड बेसिकली वही है, सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस के लिए फीस हायर है, बाकी सबके लिए फीस कम कम है। तो या सो दैट्स द आई फीस। थिंक वी कैन अप्रोक्सीमेटली ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि 20 से 25 लाख के आसपास तुम्हारा खर्चा होने वाला है ट्यूशन फीस में। 20 आई से थिंक। 25 लाख was back when I was there, तो it was in my ओह, ओके। semester। हाँ। तो अभी ये बहुत बढ़ हाँ। चुका है, अभी इट इज अराउंड हाँ। आई गेस 3 to 4, तो दैट विल बी 30 to 40 थ्री टू LPA। फोर Oh my God, crazy fees. Okay, 30 to 40 थापर LPA हैज for गॉट only for yeah, ट्यूशन पर्पस। only for tuition fees also. उसके या बाद भी ओनली फॉर हॉस्टल्स ट्यूशन। वगैरह खर्चा होगा, या उसमें बाद में आते हैं, बट आई नीड टू प्रोसेस अ लिटिल। 30 to 40 टोटल 4 साल का, क्रेजी। सो थापर में थोड़ा सा गॉट है इट। फीस का, इट्स अ लिटिल बिट लाइक हाँ, टक्कर तो दे रहा है बीट्स पिलाने के साथ। पिट्सबर्ग के साथ टक्कर तो दे रहा है, वो तो है। कूल। सो ओके, वी हैव टॉक्ड अबाउट प्लेसमेंट पॉइंट्स एंड ऑल। हाँ, स्टूडेंट इनटेक वाला जो पॉइंट था, वहाँ पे स्पेसिफिक जो रेंज है, यू नो लाइक सपोज तुम्हारे ब्रांच पे तुमने बोला अराउंड 40 होता है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल में क्या कितना रेंज रहता है, लाइक 500,000 स्टूडेंट्स, और एंड CSE में कितना रेंज रहता है? सो एनी अप्रोक्सीमेट नंबर वहाँ पे? हमारा जो फुल बैच था, लाइक द बैच ऑफ हम्म। 2026, इट कंसिस्टेड ऑफ 4,500 पीपल अप्रॉक्स। तो सब ब्रांचेस मिला के? सब ब्रांचेस मिला के, अगेन फिर गॉट मेरे इट। ब्रांच में देयर वर 43 पीपल्स, हम्म। ठीक है। तो हम्म। देयर इज नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया कि आपको इतना लेना है इतना लेना हम्म। है, बट अगेन द नंबर ऑफ सीट्स यू विल गेट इन थापर्स वेबसाइट, मेरे ब्रांच के लिए आई गेस 60 था, सम अदर ब्रांचेस के लिए देयर मे बी 100 एंड 150 एंड 200 रेंजिंग अकॉर्डिंगली टू द नंबर ऑफ सीट्स देयर अवेलेबल फॉर दैट ईयर, ठीक है। तो हम्म। दैट्स मतलब वो ईयर स्पेसिफिक हो जाता है अगेन, लाइक आई कांट से दैट कोर्स। थप्पर मेरे ब्रांच के लिए इस साल 80 स्टूडेंट ले रहेगा, बट ऐसा नहीं होता। द नंबर ऑफ हम्म। स्टूडेंट इनटेक कंप्लीटली डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, उनके पास कितना सीट्स अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी अवेलेबिलिटी, बहुत फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एंड वो हर साल चेंज नहीं, ऑफ होता है। कोर्स। एंड ऑफ एवरीथिंग इज कोर्स। अपलोडेड इन थापर का वेबसाइट, लिए आप देख सकते हो उस साल कितना इनटेक होगा। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई वांट टू बिल्कुल। ऐड इज लाइक थापर में जो सीओई ब्रांच है, सीओई जो हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बोलते हैं, ठीक है, एक है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एक है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। द कंप्यूटर साइंस एंड हम्म। इंजीनियरिंग branch is also bifurcated into two separate branches. One is COPC, which is for Patiala campus, and one for Derabasi हम्म। campus. Thapar do also have a Derabasi campus, जहाँ पे थापर का मैनेजमेंट वाला हम्म। पोर्शन है, मतलब मैनेजमेंट वाला सारा उधर है। एंड हमारे इधर से हाँ। सिर्फ सीओई के जो देराबसी कैंपस वाले ऑप्ट करते हैं, लाइक द स्टूडेंट्स हु आर वेरी मच डिलिबरेटेड कि हाँ मुझे सीओई लेना है, कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है, तो सम स्टूडेंट्स डू ऑल्सो ऑप्ट फॉर देराबसी कैंपस, वो जाते हैं देराबसी कैंपस में थापर के फॉर स्टडिंग द लाइक कंप्यूटर साइंस, ठीक है। बट हाँ, वो मेक स्टूडेंट जो सेंस। फर्स्ट ईयर में देराबसी कैंपस में कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहे हैं, वो 2 साल बाद डू ऑल्सो ज्वाइन अस थर्ड ईयर में। एंड थापर हाँ। थापर में ऐसा प्रोग्राम भी अच्छा। है कि 2 साल आप इधर करो, 2 साल आप उनके इंटरनेशनल टाइड अप यूनिवर्सिटी में करो। थापर डू ऑल्सो है आईईपी हम्म। प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं कि इंटरनेशनल टाइड अप प्रोग्राम, जहाँ पे आप 2 साल इधर कर रहे हो, 2 साल थापर के साथ बाहर के कुछ कॉलेजेस का टाइड अप है, लाइक ट्रिनिटी कॉलेज, क्वींसलैंड कॉलेज इन ऑस्ट्रेलिया एंड एवरीथिंग। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस के साथ थापर का टाइड अप है, दैट इज कॉल्ड आईईपी प्रोग्राम। आप यू कैन ऑप्ट फॉर आईईपी प्रोग्राम एज वेल, बट ऑफ कोर्स इन दैट केस सीजीपी आपका फीस हाई हो जाएगा, एंड
उसके लिए भी आपका हुँ, एक सर्टेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सीजीपी चाहिए कि आपको 2 साल बाद इतना सीजीपी मेंटेन करना पड़ेगा फॉर यू वांट अस टू शिफ्ट यू टू अब्रॉड. So that is also a factor. मेक्स सेंस, मेक्स सेंस। गॉट इट। बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ मतलब कूल थिंग्स अंडर द हुड। सो ओवरऑल हाँ, जो मैं स्टूडेंट इंटेक्स से मतलब मैं एक रफ आइडिया लेना चाहता था लाइक कितना बैच होगा टोटल? तो यू सेड लाइक 4000, लेट्स से 5000 कभी-कभी हो सकता है। सो या, एनीवेयर बिटवीन दैट। एंड यू सेड आल्सो 2 कैंपसेस आर देयर बट उनका प्लेसमेंट आई थिंक एक साथ होता है, राइट? एट द हाँ, एंड? उनका दोनों का प्लेसमेंट एट द एंड एक ही साथ होता है क्योंकि हुँ, whatever amount of student come in the first year, half of them opt for IEP program, so they will be going abroad for their higher हुँ, studies. Okay, so हुँ, the amount of students that are shifted to Patiala campus from Deravasi campus are already like हो जाता है मतलब counter balance हो हाँ, जाता है number of student going out from Thapar and number of student coming back from Deravasi campus to हाँ। Patiala campus, तो उनका placement एक ही साथ होता है. मेक सेंस, मेक सेंस। ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट प्लेसमेंट वगैरह पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा हमने डिटेल में बात कर लिया। नाउ लेट्स शिफ्ट द गियर इनटू द कैंपस साइज एंड ऑल द फन एक्टिविटीज चीज़ों के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द लोकेशन, ऑब्वियसली यू सेड मेन कैंपस इज पटियाला आई गेस, तो उसके ऊपर ही बात करते हैं। तो हाउ इज़ द कैंपस लोकेशन? लाइक थोड़ा सा रिमोट एरिया में है या आसपास सिटी लाइफ काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है? थापर का जो कैंपस है पटियाला कैंपस जो है दैट वो बटसन रोड लीला भवन में है, बिल्कुल एकदम सेंटर ऑफ द सिटी में है. थापर का जो मतलब पटियाला का जो पॉश एरिया आप बोल सकते हो उसी में ही है, सेंटर ऑफ द सिटी. एंड एवरी मॉल्स एंड एवरीथिंग ऑब्वियसली उसके आसपास ही है बिकॉज ऑल ओवर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड कम्स टू थापर. ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के बच्चे ही काम पढ़ रहे हैं, बाहर से भी आते हैं, हाँ। अफ्रीका, नाइजीरिया एंड बहुत ऑस्ट्रेलिया वगैरह से भी बाहर से भी बच्चे आते हैं. तो all the like branded stuffs and all the showrooms and everything all are like in the periphery of that campus only. ठीक है, तो वो आउटस्कर्ट में नहीं है, that is in the center of the city. गुड टू गो. तो नाइस। एंड जो इस थापर के जो कैंपस है उधर से आपका पटियाला रेलवे स्टेशन इज वेरी नियर बाई, लाइक लिटरली वेरी नियर बाई, 40 रुपीज पर पर्सन, 50 to 40 रुपीज पर पर्सन. एंड जो बस स्टैंड है दैट इज अ लिटिल बिट दूर, दैट विल टेक 100 रुपीज पर पर्सन, बट अगेन लोकोमोशन इज नॉट अ फैक्टर बिकॉज इन द सेंटर ऑफ द सिटी लोकोमोशन इज हाईली अवेलेबल, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. Most of the like cafes and restaurants and shopping malls everything is also in the periphery, so yeah, कोई दिक्कत तो नहीं है. It is not in the outskirt, it is in the center of the city, गॉट so इट। everything is available. बेसिकली सिटी लाइफ वाला फील होता है डेफिनेटली। Yeah. गॉट इट। एंड पटियाला इज़ ऑल्सो आई थिंक फेमस फॉर थोड़ा सा ड्रग एंड ड्रिंक कल्चर के ऊपर। सो ऑल्सो आई थिंक जितना मैंने रिसर्च कर रहा था कि रेडिट वगैरह में थोड़ा सा पोस्ट आता है लाइक जैसे मणिपाल भी थोड़ा सा फेमस है, एमआईटी मणिपाल थोड़ा सा इन टाइप्स ऑफ चीज़ों के बारे में। फेमस तो नहीं मतलब इन फेमस बोलना चाहिए। सो आई थिंक थापड़ में भी शायद वो वाला एक चीज़ है। सो हाउ ट्रू इज़ इट एंड तुम्हें क्या एक्सपीरियंस हुआ इसमें? एज फॉर माई नॉलेज सिंस मेरे को ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ 4 साल में, तो आई डोंट से कि हाँ थापर में ड्रग कल्चर है और एनीथिंग. ठीक है, एंड ऑल्सो थापर का जो फैकल्टी है दे आर वेरी स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स एवरीथिंग. ठीक है, तो हमारे हॉस्टल में हर रोज मतलब ऑल्टरनेटिव टाइम चेकिंग होता है टेंटेटिवली, एंड इफ समवन इज बीन कॉट डूइंग सच मिसलिविनियस एक्टिविटीज तो उसके अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन होता है. अभी रिसेंटली यू हैव हर्ड अ केस ऑफ फाइटिंग कॉट इन थापर यूनिवर्सिटी. अगर if you have knowledge about it, two groups of students got into a fight in Thapa University, तो उनके अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया. उसमें से आई गेस 11 हॉस्टलर्स था, उनको डीवार कर दिया गया, हॉस्टल से मतलब निकाल दिया गया. दे वेर लाइक दे इवन आफ्टर दैट दे नीड टू मेंटेन अ like average percentage of like percentage means in attendance percentage, a average attendance percentage of 75%, otherwise they will strictly be debarred. And फिर there were 7 to 8 peoples जो नॉन हॉस्टलर्स थे, लाइक उनको क्या बोलते हैं जो नॉन हॉस्टलर्स थे, डे डे स्कॉलर्स. स्कॉलर्स, या डे डे स्कॉलर्स स्कॉलर्स थे, या। तो उनके अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया. दे वेर लाइक इम्पोज विद एन फी ऑफ आई गेस 7 to 8 thousand. एंड अगेन कि आपको उनको भी डिबार कर दिया गया फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. एंड आफ्टर दैट डिबारमेंट ऑल्सो यू स्टिल हैव टू मेंटेन लाइक अटेंडेंस परसेंटेज ऑफ 75%, अदरवाइज अगेन आपको फिर बैठने नहीं देंगे एग्जाम के लिए. तो या, मेक सेंस। तो बहुत बेसिकली strict. सिक्योरिटी वाला जो चीज़ें है वो काफ़ी अच्छा है। या एंड हाँ। लाइक थापर में लाइक मल्टीपल क्रेजी सिक्योरिटी सिस्टम है. इवन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ थापर समटाइम आई गेट annoyed of the fact because of that security system. You can't हुँ, readily just get into थापर campus. For students अच्छा। you have a scan
So you have to go through face scan and everything. After that only you can Hmm. enter in Thapa. And for normal faculty and everyone else who is entering Thapa through the main gate, you have to go for a complete frisking of security. Complete security frisking के बाद Hmm. फिर you can enter. बैक गेट्स में भी सिक्योरिटी है, देन टेस्लास गेट पे भी सिक्योरिटी है, फ्रंट गेट एंड नॉर्थ गेट पे भी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है. तो सिक्योरिटी सिस्टम इज वेरी क्रेजी इन थापर, लिटरली वेरी क्रेजी इन थापर. उसके बाद भी स्टिल इफ यू आर एस्केपिंग फॉर डूइंग समथिंग इन मिसलिवियस एक्टिविटीज लाइक दिस, उसके बाद तो बेटे लाइक एक्शन तो क्रेजी लिया जाता है, लिटरली क्रेजी लिया जाता है. तो देयर डर का माहौल तो Of बहुत ही course. ज्यादा है. हाँ, मेक सेंस। तो इसमें तुम्हें क्या लगता है, मतलब ये तो प्रोज भी है एक साइड में, बट कोई कई बार क्या होता है कि तुम कॉलेज लाइफ में बहुत सारा चीज़ें मतलब खुल के नहीं कर सकते बहुत बार, तो इसमें तुम्हें क्या लगता है, लाइक जैसे वीआईटी वेलोर इसमें थोड़ा सा शायद इनफेमस है कि यार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल है, सिक्योरिटी के चक्कर में यार तुम कॉलेज लाइफ अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते, बहुत बार मैंने सुना है ऐसा। तो थापर में क्या ये वाला चीज़ इस साइड में कोई कौन है कि तुम कॉलेज लाइफ उतना खुल के एंजॉय नहीं कर सकते? नहीं, थापर हैज गॉट अ क्रेजी कॉलेज लाइफ, क्रेजी कॉलेज लाइफ. लाइक बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ थापर, मैं कभी ऐसा बोलूंगी नहीं कि मेरा कॉलेज लाइफ बहुत गंदा था, ठीक है, कभी नहीं बोलूंगी. हम्म। बिकॉज आई बीइंग अ स्टूडेंट लाइक, जब मैं थापर में आई थी आई वाज एक्सपेक्टिंग कि प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, कितना ही होगा, क्या ही होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सुन रखा था एज ए फ्रेशर कोई भी वीआईटी वेल्लोर मणिपाल बिट्स पिलानी एंड थापर के बारे में अगर रिसर्च करेगा तो उनका इंप्रेशन इतना अच्छा नहीं रहेगा, जस्ट वेल गेटिंग इन, हम्म। ठीक है. But yeah, the transformation Thapar made in my life was crazy. So I तो will say that कॉलेज लाइफ इज क्रेजी. अब आप 8:30 बजे तक बाहर रह सकते हो, 8:30 बजे तक इज द मेन गेट एंट्री टाइम, 8 बजे इज द मेन गेट एंट्री टाइम, 8 बजे आपको मेन गेट में एंट्री करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पेरेंट्स के पास मैसेज चला जाएगा, ऑटो जनरेटेड मैसेज कि आपकी ईयर ने 8 बजे के बाद मेन गेट में एंट्री किया, ठीक है. अगेन द हॉस्टल एंट्री टाइम इज 8:30 बजे, 8:30 बजे आपको हॉस्टल में एंटर करना पड़ेगा. अदरवाइज लाइक गर्ल्स के केस में तो स्पेशली after 3 late entries, caretaker will call your parents ki your year has been like entering the like hostel premises 3 दिन ऑल्टरनेटिवली. सो ऐसे ऐसे नॉलेज में चला जाएगा हम्म। लाइक पेरेंट्स के में, ठीक है. समटाइम्स यार क्रेजीली अभी ऐसा अभी हो रहा है कि हमारा जो डीन मैम है, द न्यूली अपॉइंटेड डीन मैम, शी इज ऑल्सो लाइक, वो खुद भी थोड़ा सा मतलब गेट पे खड़ी हो जाती है फॉर फ्रिस्किंग. बट दैट डजंट मीन दे कि हमारा सिक्योरिटी की वजह से हमारा कॉलेज लाइफ खराब हो रहा है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं. क्योंकि थापर में यू हैव हर्ड अबाउट थापर्स टेक्नोकल्चरल फेस्ट सेटर्नेलिया, उसमें क्रेजी हम्म। क्रेजी आर्टिस्ट आता है, लाइक मोहित चौहान आया था, फिर पिछली बार हमारा वो आया था, जावेद अली आए थे. ऐसे बहुत क्रेजी क्रेजी आर्टिस्ट आता है. नॉर्मल हमारा जो वो फेस्ट होता है, एथलेटिक फेस्ट होता है ऊर्जा, उसमें भी बहुत क्रेजी आर्टिस्ट आता है. तो इफ यू वांट टू स्टे इन थापर एंड इफ यू वांट टू एंजॉय द कॉलेज लाइफ, थापर में हो, वो बंगाली में हमारा एक फ्रेज नहीं होता कि 12 मंथ में 18 फेस्टिवल्स हो रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। थापर इज लाइक हाँ, दैट हाँ, हाँ। कि 12 मंथ्स में हर महीना कुछ ना कुछ हो ही रहा है, एक्सेप्ट फॉर दैट गॉट इट। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ एग्जाम सेशन. आपका कुछ ना कुछ हो ही रहा है. एंड है बहुत लाइक बहुत क्रेजी एक्सपोजर देते हैं बच्चों को. हैकाथॉन होता रहता है, फिर उसके बाद फिर वो होता रहता है, बिजनेस केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं. देन ऐसे भी तुम्हारा अगर कल्चरल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, देन डांस सिंगिंग मल्टीपल सोसाइटीज है, यू कैन गेट इनटू इट लाइक मुद्रा, उसमें यू कैन गो. then Sur, you can go for singing specific, you can go into MLSA Microsoft Student Learning, you can go into GDS, you can go into ACM CCS, multiple technical societies. If you are more into like speaking stuff, then you can go into test Toastmasters, MU and everything. If you're more into designing and business stuff, then you can go into EDC. तो बहुत क्रेजी क्रेजी सोसाइटीज है थापर में. इफ यू आर मोर इनटू कि हाँ मुझे गर्ल पावर सपोर्ट करना है, प्रमोट करना है एवरीथिंग, यू कैन गो इनटू गर्ल अप टीआईटी. एंड इफ यू इनटू मोर इनटू आर्टिस्टिक स्टफ्स, यू कैन गो इनटू फैप्स टीआईटी. तो है थापर में सोसाइटीज मल्टीपल है आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग. अगर आपको रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन वगैरह पसंद है, यू कैन गो इनटू मार्स, आईएसटी. तो है, तो थापर में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है गॉट until इट। unless you are caught doing some miscellaneous activity from your side. Otherwise थापर do not impose any restriction to you. आपका crazy freedom है अंदर. प्लस मैंने कुछ कुछ जगह पे पढ़ा भी था कि कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसा है कि आपको ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है. यू हम्म। डोंट हैव एनी ड्रेस कोड एट थापर. ऐसा बहुत लोगों के मतलब माइंड में ऐसा है, एक हम्म। मिसकंसेप्शन है, थापर इम्पोज ड्रेस कोड. थापर में कोई ड्रेस कोड नहीं है. यू आर फ्री टू वेयर एवरीथिंग until and unless you are presentable. You are literally free गॉट to इट। do everything. प्रीटी गुड।
बेसिकली आई एम एंजॉइंग द पॉडकास्ट बिकॉज यू आर ऑलरेडी डूइंग लॉट ऑफ पॉइंट्स ऑटोमेटिकली, मतलब तुम ऑलरेडी बोल रहे हो जो मैं सपोज ड्रेस कोड वाला पॉइंट में आने वाला था, बट यू आर ऑलरेडी सेइंग दिस, इट्स प्रीटी गुड। मेरे लिए बहुत पैसिव पॉडकास्ट हो रहा है। गॉट इट। सो बेसिकली जो मुझे समझ में आया कि थापड़ में द बैलेंस बिटवीन द सिक्योरिटी एंड द कॉलेज लाइफ व्हिच स्टूडेंट्स आर गेटिंग इज, वो बैलेंस काफ़ी अच्छा है। बेसिकली सिक्योरिटी भी काफ़ी सही है, और बैलेंस मतलब कॉलेज लाइफ तो ऑब्वियसली जो सुन के लगा क्रेजी कॉलेज लाइफ प्रीटी गुड, यू आर पेइंग हेफ्टी अमाउंट, सो कॉलेज लाइफ अच्छा मिल रहा है, दैट इज गुड। एंड ऑल्सो सेट लाइक क्लब्स वाला पॉइंट में मैं जाने ही वाला था, बट यू ऑलरेडी सेड इट। क्लब्स मतलब इस सोसाइटीज बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा है, एंड सो बेसिकली फॉर गेटिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो एक्सपोजर है वो बहुत आराम से तुम्हें मिल सकता है एज ए स्टूडेंट। Got it. So wow, we have already talked about so many points यहाँ पे एक ही सेंटेंस मतलब एक ही फ्रेज में, दैट इज गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा जेंडर रेशियो के बारे में। लाइक बहुत लोगों को लगता है कि इंजीनियरिंग में मोस्टली शायद मतलब जेंडर रेशियो थोड़ा सा फीमेल में वीक रहता है देन मेल, तो यहाँ पे थापर कहाँ पे लाई करता है? लाइक तुम्हें ऑब्वियसली ब्रांच टू ब्रांच वेरी करेगा, बट ओवरऑल इन जनरल जेंडर रेशियो कैसा है? See, as in Thapar, if I speak Thapar as in whole, Thapar में Thapar Institute of Engineering and Technology is a part of Thapar, ठीक है? Thapar do also have liberal हम्म। arts, which we call Teslas, ठीक है? हम्म। तो Teslas में या basically लड़की रेशियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? Again, if या we come to the Thapar Institute of Engineering and Technology, there are some branches like biotech हो गया, biomedical हो गया, their girl हम्म। ratio is crazy, ठीक है? उधर that is also हम्म। a girl dominating, female dominating field, तो उधर आपको अच्छा खासा गर्ल देखने को मिलेगा। बट या सम कोर ब्रांचेस लाइक अगर मैकेनिकल देख लिया आपने, सिविल देख लिया, केमिकल देख लिया, तो उधर आपको थोड़ा सा मेल डोमिनेटिंग ज्यादा लगेगा। बट अदर नॉर्मल जनरल ब्रांचेस लाइक सीओई, सीएससी, फिर ईएनसी, सीआईसी, इलेक्ट्रिकल, इसमें है इक्वल रेशियो ही है ऑलमोस्ट। देयर इज नो गर्ल फीमेल डोमिनेटिंग, मेल डोमिनेटिंग, देयर इज इक्वल रेशियो। बट एज आई सेड कि हाँ उस साइड थोड़ा सा है। या एंड मतलब वन, ओवरऑल बेसिकली काफ़ी सही रेशियो है ओवरऑल। या कंटिन्यू, यू आर सेइंग समथिंग आई गेस। yeah, one thing I was going to add is like I forgot just. I literally कूल, forgot. कंटिन्यू। ओके देन कंटिन्यू। अब थोड़ा सा मतलब ओवरऑल हमने मतलब मौज मस्ती वाला चीज़ों के ऊपर बात कर लिया कि कैंपस का लोकेशन काफ़ी अच्छा है, जो काफ़ी सिटी लाइफ में तुम्हें देखने को मिलता है, एंड ऑल्सो जो तुमने भी ब्लैंक हो रहा हो, मतलब इतना पॉइंट्स हमने एक साथ कवर कर लिया। ओके सो क्लब्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है काफ़ी सही है, एंड सिक्योरिटी भी काफ़ी डिसेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा मतलब एकेडमिक से पहले लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में। तो ओवरऑल आई थिंक थापर प्रिटी ओल्ड कॉलेज है। लाइक आई थिंक कितना साल हो गया थापर का 70 एस्टेब्लिश हुए हुए? plus years, 70 plus years. 70 प्लस ईयर्स, तो काफ़ी ओल्ड कॉलेज है, सो रेपुटेशन काफ़ी अच्छा है ऑफ कोर्स। सो इन दैट सिनेरियो तुम्हें क्या लगता है ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज क्या वो ओल्ड वाला फील होता है या मतलब मॉडर्न जैसा ही फील होता है? थापर में हर किसी दिन कहीं ना कुछ टूट रहा है और कहीं ना कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है। आप कभी भी थापड़ में ऑफ जाओगे, कोर्स। इट्स नेवर अ ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स ऑलवेज अ क्रेजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो मतलब हाईली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? वो हर 2 महीने, हर 5 साल, हर 2 साल कुछ ना कुछ चीजों को तोड़ रहा है, कुछ ना कुछ चीजों को रीबिल्ड कर रहा है। लाइक हर हॉस्टल आप नाइस। जाओगे, जैसे कि मैं जब गई थी, मेरे मम्मी पापा वेर वेरी मच शॉक्ड व्हेन दे वेंट टू थापर, ठीक है? दे वर लाइक क्रेजी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? अगेन व्हेन दे रिविजिटेड थापर व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर, दे वाज लाइक व्हाट हैपेंड, द होल कॉलेज एंटायरली चेंज्ड। लाइक पूरा या इंफ्रास्ट्रक्चर उनका चेंज हो जाता है हर 2 साल में। यू कैन जस्ट कॉन्स्टेंटली लाइक सी थापर इन अ सेम वे। जैसे कि अभी मैं बाहर आई हूँ, इट्स बिन 5 to 6 months दैट आई हैव लाइक आई एम नॉट इन थापर, ठीक है? तो अगेन व्हेन आई विल गो टू बैक टू थापर फॉर माई ग्रेजुएशन एंड एवरीथिंग, तो दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो एंड आई नो दैट कि वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा। ये होता ही है कि कुछ ना कुछ टूट रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है, देयर इज नेवर अ कांस्टेंट थिंग। नाइस नाइस, बेसिकली दे आर इन्वेस्टिंग द मनी दे आर गेटिंग, Yeah. बेसिकली दैट्स प्रीटी गुड। Whatever money you are नाइस। investing in Thapar, it's never a waste. It always being invested in somewhere or the other. कभी भी तुम ऐसे नहीं फील करोगे कि भाई ये चीज तो मैंने देख लिया, ये तो पुराना हो गया, ये कब तक ऐसा ही चलेगा, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, एसी नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। एसी नहीं है, अगले दिन देख लो कि क्लासरूम में एसी लग गया। आपने देखा कि एस्केलेटर नहीं है, अगले दिन देख रहे हो कि लिफ्ट लग गया। आपने देख लिया कि इधर मेरा छत टूट गया, अगले दिन देख रहे हो पूरा का पूरा छत ही रिप्लेस हो गया। तो इट्स नेवर कि यू कंप्लेन एंड थापर डोंट टेक एक्शन, यू कंप्लेन एंड अगले दिन पूरा चीज ही रिप्लेस हो जाता है। तो इट्स अ लाइक क्रेजी थिंग। गॉट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा हॉस्टल वाला चीज़ों के बारे में, हाउ गुड द हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है और ओवरऑल कैसा है हॉस्टल्स क्वालिटी? सी हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर इन थापर इज वेरी मच क्रेजी, ठीक है? बहुत ही अच्छा है। ईच एंड एवरी हॉस्टल इज प्रोवाइडेड विद क्लीन वाटर, गुड हाइजीन मेंटेन्ड वॉशरूम्स एंड तुम्हारा एसी वगैरह एंड एवरीथिंग, ठीक है? गीजर वगैरह सारे हॉस्टल्स में है।
coming to the hostel point, बॉयज हॉस्टल के बारे में आई विल गो लेटर, आई विल कम टू द गर्ल्स हॉस्टल फर्स्ट, ठीक है। तो गर्ल्स हॉस्टल में आई, ई एंड जी, दीज थ्री हॉस्टल्स आर हैविंग कॉमन वॉशरूम्स, ठीक है। हर फ्लोर में हुँ, कॉमन वॉशरूम्स है, एंड दे आर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, लाइक फर्स्ट फ्लोर ए पोर्शन, फर्स्ट फ्लोर बी पोर्शन, दिस थिंग, ठीक है। देन कमिंग टू एन हॉस्टल विच इज द गर्ल्स हॉस्टल में सुप्रीम हॉस्टल माना जाता है उसको, एंड आई माई सेल्फ हैव बिन लिविंग इन एन हॉस्टल फॉर आई गेस 2 years, 4 constant semesters, हुँ, ठीक है। तो एन हॉस्टल में यू गेट अ प्राइवेट विद अटैच्ड वॉशरूम, वी गेट अ प्राइवेट रूम विद शेयर्ड वॉशरूम, वेर 2 rooms आर अटैच्ड एंड एमिडेस्ट उस रूम के आपका वॉशरूम रहता है, एंड 2 girls शेयर द वॉशरूम, ठीक है। फिर उस हॉस्टल में आपका 2 seater रूम्स भी है, 4 seater रूम्स भी है, ठीक है। तो दैट्स अ क्रेजी हॉस्टल, एंड हर वॉशरूम्स में यू गेट गीजर्स अटैच्ड, you get a water filter attached, you get filtrated pani, you get AC and everything, ठीक है। then coming to a new constructed hostel, PG hostel है, फिर एक क्यू हॉस्टल है, फिर एक एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ पीजी हॉस्टल भी है, एंड थापर में इफ यू गो इनसाइड मोस्ट ऑफ द हॉस्टल हैव फॉलो द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। I, E and G almost follow the same infrastructure. I is little bit older hostel, so it's been reconstructed again, and completely different infrastructure. As I said, it's the ultimate hostel for girls. तो इसमें आप हर तरीके का रूम देख सकते हो, and you can opt it accordingly. Also, the fee structure is according to the room. Then PG hostel, newly constructed PG hostel, and A hostel and Q hostel also, they all follow the same infrastructure. ठीक है, they have girls, 2 girls room attached to a single washroom, and in each girls room there are 2 bed occupancy. Good to go. हुँ, And हमारा नीचे मेस होता है, that is also again given to Sodexo food service, and Thapar food service भी है, but Thapar mess service is only operating during the hostel hours in I हुँ, for girls, and J and K for J and कोई और hostel, J and H for boys, ठीक है। तो या दैट इज ऑल्सो गुड, एंड बॉयज गॉट इट। हॉस्टल में अगेन बी सी फॉलो द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, जे एंड एच फॉलो द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, के एंड उस साइड एक और हॉस्टल है, एल फॉलो द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड बाकी एम इज द अल्टीमेट हॉस्टल फॉर बॉयज, जिसमें एम तो बहुत ही बड़ा हॉस्टल है, इसमें ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, लाइक ब्लॉक ई तक है, A to E तक ब्लॉक्स है एक ही हॉस्टल के अंदर। तो दैट्स अ क्रेजी थिंग। बाकी हाइजीन एंड एवरीथिंग इज अप टू नाइस, यू, थापर के साइड से तो एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। नाइस, नाइस मतलब काफ़ी मतलब सुन के लग रहा है कि यार हॉस्टल काफ़ी प्रीमियम साइड होने वाला है। सो व्हाट इज़ द फीस लाइक मतलब डिफरेंट हॉस्टल्स के अकॉर्डिंग हाउ इज़ द फीस स्ट्रक्चर? फॉर गर्ल्स एन हॉस्टल में सिंगल वॉशरूम विद सिंगल रूम विद अटैच्ड वॉशरूम हैज द अल्टीमेट फी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका शेयर्ड वॉशरूम, सिंगल रूम विद शेयर्ड वॉशरूम। उसके बाद आता है कि 2 seater रूम विद अटैच्ड वॉशरूम, ठीक है। एंड बाकी हॉस्टल्स में भी उसके मतलब जो शेयर्ड वॉशरूम्स वाले हैं उसमें थोड़ा सा कम फीस होता है, और जो लाइक प्राइवेट रूम्स विद शेयर्ड वॉशरूम्स होते हैं उसमें फीस थोड़ा सा हाई होता है। तो या एंड हाउ इज़ द नंबर्स अप्रॉक्स? नंबर्स अगेन इट डिपेंड्स ईयर वाइज। अभी अच्छा, मैंने कुछ एक नंबर बता हाँ, दिया अकॉर्डिंग टू माई ईयर, अगेन नेक्स्ट ईयर इट विल गेट चेंज्ड, सो बेटर नॉट टू गेट इनटू ऑफ नंबर्स। कोर्स, ऑफ कोर्स। तो ओवरऑल लेट्स से द रफ आइडिया लेट्स से लाइक कितना मतलब 10 लाख के आसपास खर्चा होगा और 8 लाख मतलब एक रफ आइडिया जिससे मतलब स्टूडेंट्स को मेरे बजटिंग में हेल्प हो जाए ना? मेरे मेरे साल जो आई सेड कि अगेन 2 years में एन डिपेंड करेगा। हॉस्टल में थी, हाँ, एन हॉस्टल में थी, हाँ। तो मेरा फीस अकॉर्डिंगली एन हॉस्टल में था रूम का 80 to 85,000, 75 to 65 to 80,000, इंक्लूडिंग लाइक दैट्स मेस पर एंड सेमेस्टर? पर सेमेस्टर, या इट्स पर सेमेस्टर या गॉट इट। तो मोटा-मोटा आई थिंक 5 टू 10 लाख मान के चल सकते हो 4 साल का या डिपेंडिंग अपॉन चॉइस एंड ऑल। या अगेन या मेस थिंग इज डिफरेंट। अगर आप थापर मेस ऑप्ट कर रहे हो, हुँ, लाइक ई जी और आई हुँ, हॉस्टल हुँ, ऑप्ट कर रहे हो, देन थापर मेस का थोड़ा सा कम फीस होता है, अगेन सोडेक्सो वाले मेस का थोड़ा सा कम ज्यादा फी होता है। लेट्स इन माई टाइम लास्ट ईयर इट वाज 24.5 thousand, एंड माई हॉस्टल फी वाज नियर अबाउट 85,000। तो मोटा हुँ, मोटा आप मान के चलो, लाइक हॉस्टल एंड पूरे चीज खाने वाने मिला के आपको 1 लाख तक चला जाएगा आराम से। हुँ, मेक्स सेंस, मेक्स सेंस। तो मतलब जो बजट होगा उसमें लाइक 30 टू 40 ट्यूशन फीस प्लस लेट्स से 5-6 लैक्स ऐसे मान सकते हो फॉर हॉस्टल्स। ऑब्वियसली ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन चॉइस बट अगेन रफ आइडिया फॉर द स्टूडेंट्स हू आर वाचिंग।
ओके, तो हम आरओआई के पॉइंट में आते हैं लास्ट में। तो उससे पहले थोड़ा सा लेट्स कंक्लूड द एकेडमिक सेक्शन। लाइक तुम्हें ओवरऑल क्या लगा कि एकेडमिक्स, यू ऑलरेडी सेड जो प्रोफेसर्स वगैरह काफ़ी मतलब वेल नोन प्रोफेसर है, काफ़ी एस्टेब्लिश प्रोफेसर है, बट ओवरऑल एक होता है लाइक एक स्टिकनेस होता है कि यार कुछ कॉलेजेस में शायद एकेडमिकली उतना हार्ड चेकिंग नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा ईजी टू गेट मार्क्स होता है, और कुछ कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट होता है एकेडमिक्स में। तो उस लाइन पे कहाँ पे लाई करता था पर मोटा मोटा अकॉर्डिंग टू योर Thapar mein एक्सपीरियंस? getting marks is never easy. Like ओके। from my point of view, getting marks is never easy. Also, Thapar में attendance related बहुत strictness है. Whosoever student is watching this podcast and like coming to Thapar, it's better for to get to into their knowledge that Thapar में attendance का बहुत strictness है. Depending upon the teacher and depending upon the academic curriculum, if a teacher has specified you need to maintain a certain amount of like XYZ amount of attendance percentage, you need to maintain that XYZ of attendance percentage. Otherwise, you will be debarred and you won't be able to sit for MST and EST paper. ठीक है. जिसको फिर आपको ऑक्सी वगैरह देना पड़ेगा वो अलग चीज है. ठीक है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. यहाँ पर मैं अटेंडेंस इज लिटिल बिट स्ट्रिक्ट. अगेन कमिंग टू द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, चेकिंग पूरा स्ट्रिक्ट होता है. लाइक सीएससी वगैरह ब्रांचेस में अगर देखेंगे चेकिंग पूरा स्ट्रिक्ट होता है. हमारे ब्रांचेस में भी देखेंगे चेकिंग पूरा, लाइक ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन टीचर टू टीचर, बट चेकिंग होता है, स्ट्रिक्ट होता है. देयर आर सर्टेन पॉइंट which is already fixed by the like regulatory bodies of Thapar. वो सारा फॉलो होके फिर चेकिंग होता है. तो चेकिंग इज लिटिल बिट स्ट्रिक्ट. इट्स नेवर इजी टू गेट मार्क्स इन थापर. बट हाँ, अगेन आप गुड टर्म्स में हो टीचर के साथ, यू आर मेंटेनिंग अ गुड इम्प्रेशन, यू आर स्टडिंग रियली हार्ड, आपको पता है सारा पॉइंट्स, यू आर गुड रिस्पॉन्सिव इन द क्लास. तो मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर आपका इंटरनल मार्क्स वगैरह जो भी लगता है वो इजीली लग जाता है. तो गेटिंग मार्क्स इज गॉट इट। easy. At the same time, checking is tough. गॉट इट। तो बेसिकली कॉलेज लाइफ जितना मतलब फ्री है उतना ही ज़्यादा एकेडमिक स्ट्रिक्ट भी है, तो ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। यू हैव टू बैलेंस बोथ बेसिकली। सो या गॉट इट। नाउ लेट्स टॉक थोड़ा सा सीनियर जूनियर रिलेशनशिप के बारे में। लाइक क्या और रैगिंग वाला माहौल थोड़ा बहुत है या बिल्कुल चिल साइड लाई करता है? रैगिंग कुछ नहीं है. लाइक एज आई हाँ। सेड कि मैं जब एन हॉस्टल में थी, तो आई हैव बिन इन हॉस्टल फॉर 2 consecutive years, जहाँ पे मेरे हम्म। साथ फर्स्ट ईयर्स भी थे. तो जस्ट इमेजिन हम्म। फोर्थ ईयर थर्ड ईयर एंड हायर ईयर्स विद फर्स्ट ईयर. तो रैगिंग तो कुछ नहीं हम्म। है, चिल सीन है. एंड थापर में सीनियर्स आर लाइक स्प्रेड एवरीवेयर. थापर का जो एलुमिनाई बॉन्ड है दैट इज क्रेजी. लाइक हनीवेल का जो हम्म। ग्लोबल सीईओ है विमल कपूर, ही इज ऑल्सो फ्रॉम थापर. द मारुति का सीईओ, ही इज ऑल्सो फ्रॉम थापर. तो थापर में जो क्रेजी एलुमिनाई है, ठीक है. एंड इफ हम्म। यू लाइक आर बिहेविंग गुड एंड नॉट शोइंग एटीट्यूड टू द सीनियर्स, सीनियर्स आर वेरी हेल्पफुल, लिटरली वेरी हेल्पफुल. मेरे मतलब एज फॉर माई परस्पेक्टिव, मेरे दोनों इंटरव्यू के टाइम पे मेरे सीनियर्स हेल्प मी क्रेजिली, बहुत क्रेजिली हेल्प किया था. ठीक है, दे नेवर सेड कि आई एम बिजी, आई एम नॉट विलिंग टू हेल्प यू और समथिंग लाइक दैट. यू आर लाइक यू आर इन अ गुड टर्म with any seniors and you are in a society and making good connections with senior, you ask them कि भैया दीदी I need this help, they will never say no if it's within their like ability to help you. कभी नहीं बोलता. नाइस। Always they are good to नाइस ready नाइस। to help. Got it. Cool. So yeah, we have talked about almost all the points. Now we have to conclude the podcast. थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया यहाँ पे फॉर यू, सॉरी। तो No problem. लेट्स कंक्लूड इट। आई थिंक ओवरऑल जो मुझे समझ में आया कि इट्स प्रीटी गुड, लाइक सभी चीज़ें प्लेसमेंट स्टैट पे इज़ प्रीटी गुड। ओवरऑल सीनियर जूनियर रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो प्रीटी गुड। कैंपस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कॉलेज लाइफ तो बहुत क्रेजी है। हॉस्टल तो मुझे सुन के ही बहुत अच्छा लगा, काफ़ी क्रेजी है। बट द आई थिंक ओनली कॉन साइड, कॉन इन द सेंस कि जो एक डिसाइडिंग फैक्टर था पर का हो सकता है, विच इज़ द फीस ओनली। Yeah, एंड फीस it's a इज़ प्रीटी little bit हाई, higher. लाइक मुझे तो हाँ, मुझे सुन के तो बहुत ज़्यादा ही हाई लगा। सो ओवरऑल सपोज अब लेट्स टॉक अबाउट द आरओआई। लाइक व्हेन अ स्टूडेंट थिंक अबाउट आरओआई, दे से कि लाइक दे सी कि लाइक वी आर स्पेंडिंग 30 to 40 lakhs, इवन मोर। आई थिंक 30-40 से भी ज़्यादा हो जाएगा सब मिला के। सो एंड ऑल्सो इन द लास्ट वी आर गेटिंग लेट्स से 10-15, लेट्स से सीएससी ब्रांचेस में कितना जाएगा, 15 एवरेज जाएगा लेट्स से। तो अगर वी आर गेटिंग दैट, सो इफ यू आर कंसिडरिंग दैट, तो ROI is not like very good उस मामले में। बट ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स यू हैव टू कंसीडर, लाइक कॉलेज लाइफ हो गया, ब्रांड नेम हो गया, रेपुटेशन हो गया, ये सब चीज़ें। तो तुम्हें ओवरऑल क्या लगा, क्या वो सब चीज़ें ROI को एक्चुअली में ओर्थिड बनाता है थापर को, या शायद तुम्हें लगा कि नहीं थोड़ा सा आई थिंक एक्सपेंसिव कॉलेज ज़्यादा है? तो ओवरऑल वहाँ पे तुम्हें क्या लगा 4 साल बाद?
आरओआई के पॉइंट ऑफ Thapar व्यू से? Thapar is little bit expensive, but it's not overhyped. It's worthy of its hype. ओके, ठीक है. तो if you are ओके। investing your 50 lakh approx, if you are investing your 50 lakh हुँ, in a college, it also gives like Thapar ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ता to give you the return of हुँ, investment कि अगर हुँ, आप invest कर भी रहे हो 50 lakh तो आपको वो 50 lakh का हर एक penny worth it लगेगा once you get into that college. ठीक है. Again coming to a हुँ, placement perspective, placement is completely up to a student. ठीक है. My parents, after हुँ, investing 40 lakh in me in Thapar, they are not like sad at this moment of time. I just performed every bit of my nerves to make them proud, and they are. ठीक है. तो अब कूल। placement is completely upon स्टूडेंट्स. वो कोई कंपनी लाइक थापर कोई भी अपने एंड से मौका नहीं छोड़ता कंपनियों को लाने में. अब आप कैसे हुँ, प्लेसमेंट ले रहे हो वो पूरा आपके ऊपर. थापर खुद के एंड से कोई कट ऑफ नहीं सेट करता, कोई ब्रांच रेस्ट्रिक्शन नहीं सेट करता, कुछ नहीं सेट करता, आपको खुली छोड़ा है. तो आप कैसे खुद को क्रेव कर रहे हो, कार्व कर रहे हो, वो सब कुछ आपके ऊपर है. उन स्थापर में मल्टीपल सोसाइटीज है, जैसे मैंने बोला सीसीएस हो गए, एसीएम हो गया, एमएलएससी हो गया, जीडीएससी हो गया, ये सारे टेक सोसाइटीज है. गो पार्टिसिपेट इन दिट, यू आर फ्री टू पार्टिसिपेट. आप जाओ उसमें इंटरव्यू दो, आप पार्टिसिपेट करो, हैव अ गुड कम्युनिकेशन विद सीनियर्स. दे विल जस्ट मोल्ड यू इनटू अ टेकी, लाइक गुड टेकी टू लैंड इनटू द इंडस्ट्री. देन अगर आपको मतलब ऐसा है, फियर है कि आप बात नहीं कर सकते लोगों के सामने, गो ज्वाइन एमयूएन, गो ज्वाइन टोस्ट मास्टर, गो ज्वाइन मल्टीपल अदर सोसाइटीज. तो उसके दे विल ऑल्सो मोल्ड यू, दे विल पुश यू. लाइक ऐसा नहीं कि दे विल मोल्ड यू, दे विल पुश यू कि आपको करना ही पड़ेगा. एंड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू ऑल्सो पुश योर सेल्फ, एंड उसके बाद अल्टीमेटली तुम ऐसा बन ही जाओगे दैट यू आर इंडस्ट्री हाईली इंडस्ट्री प्रेजेंटेबल. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं, मैं अपना लाइक स्किल सेट के एनहेंस करने के चक्कर में मैं अपना कल्चरली इम्बैलेंस हो रही हूँ, मैं अपना करिकुलर एक्टिविटी नहीं ले पा रहा, मैं अपना हॉबी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, इन दैट केस यू आर फ्री टू जॉइन सोसाइटीज लाइक मुद्रा नॉक्स एंड एवरीथिंग, जहाँ पे आप डांस आर्ट कल्चर लाइक फैब्स में आप पेंटिंग वगैरह करके अच्छे खासे जगह पे जा सकते हो. ठीक है. तो इट्स लाइक द return of investment. If you are saying then Thapar have a crazy return of investment, again it depends on how the student takes it. थापर में 75 एलपीए का भी पैकेज आता है, थापर में 2 5 एलपीए का भी पैकेज आता है. ठीक है. अब नाउ इट हुँ, कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द स्टूडेंट दैट आर यू टेकिंग द 75 एलपीए और आर यू टेकिंग द 5 एलपीए. तो इट्स मेक कम्प्लीटली ऑन सेंस। स्टूडेंट. ऑफ कोर्स एंड आल्सो आई डोंट थिंक कि हमेशा हमें सिर्फ प्लेसमेंट के टर्म्स से ही आरओआई मतलब जज करना चाहिए. ऑल्सो सी द अदर थिंग्स लाइक how it basically you said how it mold you to become a better person, better developer, better kuch bhi overall in the 4 years. You So are getting a yeah, college amidst of the city. You are getting every yeah. accessible things. You are getting a crazy college life. You are getting to make a good alumni connection Hmm, and good interaction with hmm, student. You are getting multiple opportunities to mold yourself. And Thapar में yeah, hmm, एक also department है which is called the placement department. ठीक है. Over hmm, there multiple sessions होता है. ठीक है. Like hmm, बहुत कुछ होता है, जैसे कि आपको गेस्टिमेट्स के लिए तैयारी कराया जाता है. आपको अगर कुछ टेक्निकल नॉलेज नहीं है फिर वो टेक्निकली आपको प्रिपेयर कराता है. तो hmm, अब स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ही है कि अब मान लीजिए कि थर्ड ईयर तक मुझे कुछ पता ही नहीं है इस चीज़ के लिए, देन इफ आई गो टू दैट डिपार्टमेंट एंड आस्क कि आई नीड हेल्प, वो फ्रीली एक्सेसिबल है सबके लिए. ठीक है. देन दे विल कंप्लीटली ट्रेन यू टू अ बेटर पर्सन बाय द एंड ऑफ प्लेसमेंट सेशन. makes तो sense. ऐसा नहीं कि बच्चों को बता दिया कि आप खुद ही प्लेसमेंट के लिए तैयारी करो, नहीं, वो साथ साथ खुद भी Hmm, करवाते हैं. अगर आपको लगे कि हाँ इस मान लीजिए कि मैं कुछ एक गेस्टिमेट्स के ऊपर तैयारी कर रही हूँ या पावर बीआई के ऊपर तैयारी कर रही हूँ, आई डोंट थिंक दैट आई एम रेडी फॉर इंडस्ट्री, देन आई विल गो टू द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, थापर इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपार्टमेंट, एंड दे विल ऑल्सो अगेन मुझे उस चीज़ में इवेलुएट करके फिर दे विल गिव कि हाँ यू आर रेडी और नॉट. ठीक है. तो यू गेट अ hmm, पर्सनलाइज्ड इवेलुएट रिपोर्ट ऑल्सो इन दैट केस. यू कैन गेट वन एंड वन इंटरेक्शन विथ मेंटर्स ऑल्सो, जो मतलब उधर है स्पेसिफिकली आपके लिए कि आपको क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए. यू कैन गो एंड कर्व योर रेज्यूमे विथ देयर हेल्प. तो एवरीथिंग इज लाइक फ्रीली अवेलेबल. एंड वन मोर थिंग कि थापर में ऐसा कोई कॉन्स्टेंट नहीं है कि आप फोर्थ ईयर में जाके ही प्लेसमेंट ले सकते हो. अब जब कंपनीज आते हैं, कुछ कुछ कंपनीज ऐसे भी आते हैं इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, तो जूनियर ईयर्स ऑल्सो आप उसमें भी बैठ के प्लेसमेंट ले सकते हो. यू आर फ्री टू टेक द समर प्लेसमेंट जो 2 महीने का होता है. Then if you get makes PPO sense. from it, then it's completely up to it. That's very good. Makes sense. Cool. So basically, there are a lot of opportunities. You have to grab yourself. But yeah, Thapar, you're saying the overall the money you're putting, it's pretty much worth it. Cool.
So yeah, इसी के साथ end करते हैं. I've talked about almost every point. Thank you for doing the podcast, Bernica. And by the way, if you are someone watching this video and want to know more about Thapar, so I think I will give the LinkedIn link of Bernica in the description if you are Yeah, fine sure. with it. So people can maybe DM you or something to know Yeah, any sure, specific sure. questions they have. Cool. Thank you for doing. इसी के साथ हम end करते हैं. Thank you so much, Udit. Thank you so much. Have a nice day ahead. Yep.